Hello friends, Standard 6, Chapter 1, Understanding Diversity. He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Shamir-Do has gone. अगले दिन उस क्रॉसिंग पे जहाँ पे वो न्यूज़पेपर बेचता था वो समीर-दो वहाँ पे नहीं था, तो वो पूछ रहा है कि समीर-दो कहाँ गया. When Samir-ek is more familiar with English, Shamir-do speak Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. वो अलग अलग रिलीजन से थे, फिर भी वो समीर एक और समीर दो वो अच्छी तरह से एक दोनों के साथ बात करते थे. समीर एक और समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल backgrounds. While Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. समीर एक और समीर दो वो दोनों ही अलग रिलीजन से थे. समीर एक है जो वो हिंदू था, समीर दो है वो मुस्लिम था. वो अलग अलग धर्मों में से थे, फिर भी वो अच्छी तरह एक दोनों से बात करते थे. और ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उसे ही हम एक डाइवर्सिटी का पार्ट कहते हैं. Make a list of the festivals that might have been celebrated by the two boys, समीर एक, समीर दो. यहाँ पे आपको ये लिखना है कि हिंदू और मुस्लिम में क्या सेलिब्रेट होता है. जैसे कि हम हिंदू में समीर एक हिंदू है तो उसमें दिवाली आती है, समीर दो जो मुस्लिम है तो ईद आती है, ऐसा. In addition to their diverse religions and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, why Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspaper. यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों के धर्म जो है वो बिल्कुल अलग है दोनों से, और फिर भी वो अच्छे दोस्त है. और यहाँ पे एक आपको एक सवाल किया है कि समीर एक है वो स्कूल जाता है, तो समीर दो है वो स्कूल क्यों नहीं जाता, वो क्यों न्यूज़पेपर बेचता है, ऐसा. समीर दो did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समीर दो है वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कूल जाने की, क्योंकि वो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास न खाने का पैसा होता है, न कपड़ा पहनने के पैसे होते हैं, और जो रहने का प्लेस होता है वो भी नहीं होता. तो समीर दो है वो एक ऐसा बच्चा है. तो ये जो डिफरेंट है तो इस कारण वो स्कूल नहीं जा सकता. Here we are talking not of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunities that are available to other persons. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे हैं वो बहुत उनमें जो भिन्नता है, काफ़ी सारी भिन्नता है, फिर भी वो दोनों अच्छे मित्र हैं. और उनके पास जो समीर एक है वो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और वो दूसरे बच्चे से अलग पड़ता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और स्कूल भी जाता है. तो ऐसे जो बड़ा बच्चा होता है वो दूसरों से अलग पड़ता है. The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided
into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered indivisible, and because you were not supposed to change your professional, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी जो कास्ट है वो बहुत सारी भिन्नता होती है, और किसी की स्किन अलग होती है, तो किसी का पहनने और बैठने का उठने का तरीका अलग होता है, किसी की भिन्नता है। तो अगर पढ़ाई नहीं होती तो क्या होता, तो पढ़ाई नहीं होती तो ऐसा होता कि कोई पोटर मीन्स कुम्हार का बच्चा है तो वो कुम्हार का ही काम करेगा, ऐसे होता जो अगर पढ़ाई नहीं होती तो। इसका जो पेरेंट्स का जो बिजनेस होता है वही उनको संभालना होता है, उनका वो ही प्रोफेशनल रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होता तो क्या करेगा। ऐसा यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने हमें मिलती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी वो हमारी लाइफ में क्या, उनका क्या प्रभाव होता है, उनसे हमें क्या मिलता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक शमीर एक एंड शमीर दो became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. यहाँ पे शमीर एक और शमीर दो है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है और अच्छी भाषा भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट है। वो दोनों का जो खाने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है, उनका जो फूड है वो भी अलग है, उनका जो घर है रहने का वो भी डिफरेंट है, उनका जो फेस्टिवल है वो भी अलग है, क्योंकि शमीर एक में दिवाली आती है तो शमीर दो है वो ईद इंजॉयमेंट करता है। और पहनने का क्लोथ जो है वो पहनने का तरीका भी अलग होता है, और जो भाषा है वो भी अलग अलग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all spots of different places, from books and real life and from their imagination. यहाँ पे आपने कभी ना कभी एनिमल की स्टोरी या कोई भी स्टोरी आपने सुनी होगी, कोई भी। आप जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी माँ ऐसी स्टोरी कहती थी। हमारे घर में भी कई सारे लोग बड़े होते, वो भी हमें आपको उनसे कुछ भी जानना चाहो तो आप उससे कह सकते हैं कि हमें कुछ भी स्टोरी सुनाओ, तो वो भी जानते होंगे तो आपको सुनाएंगे। तो आपने ऐसी स्टोरी कभी ना कभी सुनी होगी। तो यहाँ पे ये जानने को मिलता है कि हमने जो स्टोरी कभी ना कभी सुनी है वो स्टोरी, वो कुछ लोग होते हैं वो कुछ उसमें जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनसे वो समझते हैं, और वो रियल लाइफ में भी फॉलो करने का सोचते हैं। वो रियल लाइफ में इमेजिनेशन करते कि आपने किसी ने बोला कि वहाँ पे एक जंगल था गहरा सा, तो आप अपने माइंड में ऐसा इमेजिनेशन करोगे कि जंगल कैसा होता है, वहाँ पे एक बहुत सारे पेड़ थे, तो आप ऐसा इमेजिनेशन करोगे कि वो कैसा पेड़ है वैसा। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and
wrote stories about love and honor. Some depend into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves, played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राइटर है वो अपने इमेजिन के थ्रू वो बहुत सारे कैरेक्टर अपने माइंड में क्रिएट करता हो और बाद में वो स्टोरी बनाता है। तो उसमें से हम कुछ भी जो इमेजिनेशन राइटर हमें दिखाता है तो वो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा स्नेक है, ऐसा जंगल है, ऐसा टिगर है, वो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। तो इस स्टोरी में हमें इतना जानना मिलता है। डाइवर्स इन इंडिया, इंडिया में भिन्नता कैसी है, इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually if you think about it, we do make things that are similar except that we do them in different ways. हमारे जो इंडिया है वहाँ पे हमने आपको बताया था पहले ही कि विविधता में एकता, वैसा हमारा इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि हमारा जो धर्म है उनके जो कुछ ओकेशन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जो दूसरे धर्म का उनके भी ओकेशन अलग होते हैं। हमारा जो स्किन का कलर है वो भी अलग है, हमारा जो कपड़े पहनने का ढंग है वो भी अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। तो ऐसे डिफरेंट है टोटली, फिर भी हम सारे के सारे एक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और डाइवर्सिटी क्या है, हम कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये स्टोरी बताने वाले हैं कि पहले अभी तो हम आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी आपको अहमदाबाद जाना हो तो वहाँ पे आप कार लेके या स्कूटर लेके या फिर रेलवे या फिर अपनी खुद की कार लेके जा सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हम कुछ भी शिप्स या कुछ कैमल या पैदल ही चलना पड़ता था। वो जहाँ पे भी उनका जो ट्रेड होता था वहाँ भी लोग स्टे हो जाते थे, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि अभी जितना हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उस ज़माने में इतना नहीं था। तो हमें यहाँ पे ये जानने को मिलेगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।